Hi friends, now let's continue with the fourth topic of talk, that's regarding couple. Couple is a part of study of talk. Now let's see what couple is. So to understand what the couple is, let's take an example. Suppose there is a foot ruler. There is a foot ruler. These are the two ends of foot ruler, let's say A and B. At point A we apply a force F1 in this direction. At point B, we apply another force F2 bar in this direction. Now both the forces are acting in opposite direction. If suppose they are equal in magnitude, F1 bar is equal to F2 bar, magnitude wise both are same and direction opposite. So these are these forces, what we say is two forces which are equal in magnitude. These two forces are equal in magnitude, opposite in direction, so they cancel each other. इमीडिएटली अपना स्टेटमेंट क्या आएगा? दे कैंसिल ईच अदर. नहीं, हमने चैप्टर 5 में देखा था कि इन ऑर्डर टू कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एज वेल एज दे शुड बी एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट. दे शुड बी एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट और their line of action should pass through common point. जिसको हम लोग एक सिंपल सी भाषा में ये बोल सकते हैं कि both the forces, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं both the forces should be collinear. They should be collinear, यानी along the same line. यहाँ पे देखो तो both are collinear, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा? They cancel each other. तो रिजल्टेंट क्या होगा? The foot ruler will not move. बराबर है. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे? Two forces which are equal in magnitude, opposite direction and collinear, they cancel each other. तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में कि for two forces to cancel each other they should be equal and opposite. एक तो फिक्स है, ये तो है equal and opposite, ये तो 10th में भी था. पहला में हमने ऐड किया कि equal and opposite doesn't mean that it should cancel each other. They should be collinear also for cancelling each other's effect. बराबर है. तो अब 11 में हमने इसको रिफाइन किया था चैप्टर नंबर 5 में कि टू फोर्सेस कैन कैंसिल ईच अदर ओनली इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड शुड बी कोलिनियर. ये तीन कंडीशन कंपलसरी है. 10th तक तो कैसा था कि वी डिडंट हैव कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, फोर्स हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, इसलिए ये तीसरा पॉइंट वाज नॉट देयर. तो इक्वल ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर, ये 10th तक का नॉलेज था. 11th में आ गए, थोड़े बड़े हुए, वेक्टर्स पढ़ा तो डायरेक्शन का कांसेप्ट भी आया. इसलिए क्या बताया कि अगर डायरेक्शन इनके ऐसे कि दे आर कोलिनियर then they cancel each other. पर 5th चैप्टर में हमने ये तो समझ लिया, पर फिर क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि अगर सर ये कोलिनियर नहीं होते तो क्या होगा? If they are not collinear then what will happen? If these forces are non-collinear then what will happen? अब मौका आया उसके बारे में जानने का. तो यही सिचुएशन ले रहे हैं, वही फुट रूलर, one force acting like this, let's say F1 bar, another force acting like this, let's say F2 bar. Both are equal in magnitude, ये मेंटेन करते हैं, both the forces are equal in magnitude. यानी अब सिचुएशन क्या है? Two forces, they are equal in magnitude, they are equal in magnitude, opposite in direction, opposite in direction. Okay. What can you say about their third point? एक ये लाइन में लगा है, दूसरा ये लाइन में लगा है, यानी both are not along the same line. They are not acting at a common point. They are not along the same line. They are non-collinear. Non-collinear. बराबर है. तो ऐसे केस में क्या होगा? Will they cancel each other? Obviously not. तो क्या हो सकता है? आप भी अपने पास में फुट रूलर ले लिए, फुट रूलर नहीं तो पेन लेके कर लिए, एक फोर्स यूं अप्लाई करो, एक फोर्स यूं अप्लाई करो, एक फोर्स इस तरफ अपनी तरफ और दूसरा यूं दूसरा सामने की तरफ. टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट यू फाउंड? द पेन रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. यानी यहाँ पे क्या होगा? ये पार्ट यूं जाएगा, ये पार्ट यूं जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, रोटेशन इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. यानी कि टॉर्क जनरेट हुआ. किसने जनरेट किया? pair of these forces which are non-collinear, equal in magnitude, equal and opposite but non-collinear forces
this pair of force is called a couple. This pair of force is called couple. यहां तो रिजल्टेंट जीरो हो गया, पर अगर दे आर नॉन कोलिनियर, कंडीशन क्या है, देयर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन as well as non-collinear, then such a pair of force is called a couple. Such a pair of force is called couple, and couple always generates torque which makes the body to rotate. Couple always generates torque. This couple is capable of generating torque and thus body rotates. Thus rotation motion is created. क्योंकि टॉर्क आ गया तो रोटेशन मोशन आना ही है. क्लियर? तो ये सिचुएशन है. क्लियर? तो कपल क्या है? Couple is a pair of force which are equal in magnitude, opposite direction, but not collinear. But non-collinear, and such a pair of force is called a couple. This pair of force is called couple. Couple always generates torque, and this torque produces rotational motion. बराबर है. अब यहाँ पे दोनों फोर्स हमने कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ. जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज. चलो हम लोग इस कपल के कारण जो टॉर्क जनरेट होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या आएगा, एंड हाउ टू फाइंड अ कपल, एंड फिर उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि रोटेशन मोशन कैसे क्रिएट करता है एंड कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ कपल. लेट्स सी द इफेक्ट और हाउ द कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क, उसके बारे में बात करते हैं. सपोज ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, फुटूलर ही ले लिया अभी तो फिलहाल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं ले रहे. इसके ऊपर दो फोर्स आते हैं, F1 बार and दूसरा F2 bar. We are having both the forces like this. F1 bar equal to minus F2 bar. मतलब क्या हुआ? Their magnitude are same. F1 bar is equal to F2 bar. Magnitude दोनों का same है and direction opposite. तो they are opposite vectors हो गए ना, same है, equal magnitude, opposite direction. तो यूँ लिख सकते हैं उसको F1 bar equal to minus F2 bar. बराबर है. अब यहाँ पे with respect to center, ये फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा, ये फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा. दिस वन वी कैन फाइंड टॉर्क फॉर एनी पार्टिकल. तो यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी टाउ बार इक्वल टू, एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क टाउ वन, दूसरे पे लगने वाला टॉर्क टाउ टू. नाउ टाउ वन विल बी आर, यहाँ पे इसका पोजीशन है ना, ये वाला होगा, ये पोजीशन होगा जिसका मैग्नीट्यूड ए है, तो हम लोग उसको ए बार लिख देते हैं. ए बार क्रॉस F1 बार, इसको ए बार क्रॉस F1 बार लिख देते हैं. ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर 1 पे. फिर पार्टिकल नंबर 2 पे कितना टॉर्क लगेगा, प्लस इसका पोजीशन. अगर हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, तो दिस विल बी माइनस ए बार क्रॉस फोर्स F2 बार. बराबर है. Now F2 bar can be written as minus F1 bar also. So what you get is A bar cross F1 bar plus negative A bar cross negative F1 bar. Okay, negative A bar cross negative F1 bar. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हो जाएगा A bar cross F1 bar plus A bar cross F1 bar, यानी कि 2 times A bar cross F1 bar. बराबर है. 2 टाइम्स ए बार क्रॉस F1 बार, यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 2AF1 sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड F1 बार, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ये ए बार का डायरेक्शन और F1 बार, ये एंगल थीटा हो गया. ओके, अब हम इसको थोड़ा ज्योमेट्री खेल रहे हैं यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करते हैं लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से. ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल भी थीटा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे F1 इंटू 2A साइन थीटा लेते हैं. ये 2A साइन थीटा क्या होगा, 2A क्या है एक्चुअली, राइट द कंप्लीट लेंथ इज 2A. तो ये लेंथ 2A हो गया. इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज 2A, दिस थीटा, तो ऑपोजिट साइड विल बी 2A साइन थीटा. कैसे, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, तो ये 2A साइन थीटा हो गया. तो 2A साइन थीटा क्या बनता है, यहाँ पे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ले लो या ये ले लो. बराबर है. तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स. क्यों एनी वन फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो है, लेकिन किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू टू ए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू फोर्सेस. दिस हाउ वी फाइंड द टॉर्क इन केस ऑफ अ कपल. कपल में टॉर्क अगर फाइंड करना, कपल के कारण टॉर्क अगर फाइंड करना हो तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों सेम है, इक्वल है, इससे कोई भी एक ले लो, इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दैट गिव्स अ टॉर्क ड्यू टू कपल. अब जब भी ऐसा हो मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम तो उसको मोमेंट ऑफ बोलते हैं. तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ, किसके कारण है? मोमेंट ऑफ कपल के कारण, तो मोमेंट ऑफ कपल. सो टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल हियर. इन दिस केस टॉर्क विल बी मोमेंट ऑफ कपल. एंड मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टू फोर्सेस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टू फोर्सेस, दैट इज मोमेंट ऑफ कपल. ये हो गया टॉर्क ड्यू टू कपल. ओके, तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा? फोर्स, किसी एक फोर्स का वैल्यू एज वेल एज दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टू फोर्सेस. अब इस केस में फोर्स देखो, दे आर नॉट परपेंडिकुलर द फुट रूलर, दैट एट सम एंगल विद द फुट रूलर. तो परपेंडिकुलर हो या एंगल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लो अगर केस ऐसा है, फोर्स F1 यूं लग रहा है और F2 यूं लग रहा है, जो हमने आगे केस लिया था, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, तो क्या होगा? ये एक टॉर्क कितना होगा? एक का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस a, दैट्स मोमेंट ऑफ कपल. क्लियर? दैट्स हाउ वी फाइंड आउट. तो अब इसका फायदा क्या? तो याद करो, हम लोग बोल्ट खोल रहे थे गाड़ी का, आगे देखा था ना रिजिड बॉडी के केस में बोल्ट खोल रहे गाड़ी का, तो दिस वाज द बोल्ट ऑफ द व्हीकल. हमने स्पैनर यूज किया, स्पैनर यूज किया. अब ये स्पैनर ने जो फोर्स लगाया F एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस R, लेट्स से A बोल देते हैं, A. तो कितना टॉर्क लगेगा रोटेशन के लिए? F इंटू ए, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है? क्लियर? पर इसके बदले, आप स्पैनर के बदले एक और डिवाइस आता है जिसको हम लोग चौकड़ी पाना बोलते हैं. इट इज समथिंग लाइक अ क्रॉस. इसमें चारों तरफ बोल्ट घुमाने के वो होते हैं, नट घुमाने के लिए ये जो भी होता है अरेंजमेंट होता है स्पैनर जैसा. इसको अगर यूज करोगे, यहां लगा दिया, दोनों आर्म्स यूं आ गए. अब आप यहां पे फोर्स लगाए F, यानी क्या करेंगे? एक बाजू धक्का मारो, एक बाजू मारो, एक साथ दोनों मारो, तो सिचुएशन क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस द टू. अब टॉर्क कितना आएगा? F1 इंटू डिस्टेंस द टू, डबल टॉर्क आ गया. स्पैनर के कंपेरिजन में अगर आप ऐसे ये चौकड़ी पाना यूज करेंगे, द क्रॉस वन, क्रॉस स्पैनर, बराबर है, तो आप दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, तो यू गेट डबल टॉर्क जनरेटेड एंड सो बोल्ट विल मूव मोर इजियर. इससे देखना, आपके पापा ने अपनी किट में, गाड़ी की किट में वो पंचर बनता है, होता है, तब वो क्या बोलते हैं, व्हील निकालने के लिए जो स्पैनर यूज करते हैं, उसके वजह ऐसा चौकड़ी वाला लिया हो, तो दैट बिकम्स मोर बेटर, मोर इजियर. एंड अगर नहीं है पापा के पास में किट में, तो पापा को बताओ कि हमने ऐसा पढ़ा है, लेट्स यूज दैट. एंड अगर आपको चेक करना है कि ये बात सही है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, गो टू अ मैकेनिक हु इज डीलिंग विद डूइंग मेकिंग पंचर्स. उनके पास जाके देखना वो बोल्ट कैसे खोलते हैं, तो दे विल यूज दैट क्रॉस वन, क्रॉस पैनल्स. इट वाज वेरी इजी टू ओपन द बोल्ट. इवन कोई भी मशीन चल रहा है, अब तो कई लोग वो ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, तो मशीन में घूम रहा होता है, तो मशीन में जब घूम रहा होता है तब क्या होता है? एक फोर्स यूं लग रहा है, दूसरा फोर्स यूं लग रहा है रोटेशन में, तो दो फोर्स लग रहे हैं, वो भी टॉर्क का कंसेप्ट है. क्लियर? कोई भी बेल्ट वाला केस है, सपोज कन्वेयर बेल्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यूं कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, तो उसमें भी बेल्ट यहां से खींचाता है एंड यहाँ पे धक्का लगता है. अगेन दैट्स अ केस ऑफ कपल का एक कॉन्सेप्ट है ना वो भी. तो कपल का कॉन्सेप्ट इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू सिंपल मूवमेंट ऑफ फोर्स. सिंपल टॉर्क के बदले कपल से टॉर्क जनरेट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है. क्यों? विद द सेम फोर्स यू कैन जनरेट डबल वर्क. क्यों? टू ए डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस डबल हो जाएगा ना. इससे इट इज अ कपल विच इज मेजॉरिटी यूज. एंड इन आवर डेली लाइफ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन. ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपके सामने हो रहा है. यूज अ चौकड़ी पाना रेदर देन अ सिंपल स्पैनर फॉर ओपनिंग द बोल्ट्स ऑफ व्हीकल. सीधा सही कंसेप्ट है. क्लियर?
सो दैट इज रिगार्डिंग कपल. ओके, एंड कपल याद रखने का, equal and opposite and non-collinear forces always forms a couple, and couple always generates torque which produces rotational motion more easier as compared to simple torque. Okay, फिर आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की तरफ. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की तरफ. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यानी क्या है? मोमेंट्स मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी वी आर talking about the concept of torque. Moment of force means torque. moment of torque and moment of force यानी कि torque की बातें करेंगे. यहाँ कोई प्रिंसिपल यानी कोई लॉ नहीं है. इट्स नॉट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ लॉ, बट दिस इज एन एप्लीकेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन विच more than one forces are there, but they may not be equal, they may not be opposite in direction. यानी यहाँ पे सादा टॉर्क भी नहीं, कपल का कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे more than one forces which may not be equal, which may not be in opposite direction, they may be in different direction, any direction. तो ऐसे केस में अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करें? बराबर, तो ये एक अप्रोच है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. इस अप्रोच में हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं. एक सिंपल मशीन की बात करते हैं. एक सिंपल मशीन यानी कैसा है कि ये सपोज एक रॉड है, इट इज पाइवोटेड ऑन दिस पॉइंटेड पार्ट. ये जहां पे पाइवट किया है, टच करा के रखा है, तो ये पॉइंटेड पार्ट इज कॉल्ड फलक्रम. ये हो गया फलक्रम, दिस इज अ फलक्रम. फिर यहां पे हम लोग एक फोर्स लगाते हैं, लेट्स से F1 बार. एक फोर्स लगाते हैं F1 बार, उसे बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स लगाते हैं F2 बार. यहाँ नाउ दीज आर द टू फोर्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल. दीज आर द टू फोर्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल. क्यों? क्योंकि पाइवट से F1 का डिस्टेंस सपोज D1 बोलते हैं, पाइवट से यानी फलक्रम से F2 का डिस्टेंस सपोज D2 बोलते हैं. ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2, दोनों इक्वल नहीं है, तो फोर्स का वैल्यू भी इक्वल होना जरूरी नहीं है. ये क्या बना? इट्स अ सिंपल केस ऑफ अ लीवर. लीवर में यही तो होता है. देयर इज अ फलक्रम, देयर आर टू फोर्सेस. ये जो फोर्स है जिसको हमें उठाना है मानते हैं, तो ये लोड हो गया हमारे लिए. वी वांट टू पुश अप दिस फोर्स लोड F1 बार को पुल करना है ऊपर की तरफ, तो ये लोड हो गया. एंड यहां से हम लोग दम लगा रहे हैं, दिस इज आवर एफर्ट. दिस इज अ लोड वी हैव टू पुल एंड दिस इज द एफर्ट वी आर गिविंग. इसका सिंपल सा एग्जांपल है सीसॉ इन द गार्डन. सीसॉ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. उसमें एक बंदा यहाँ बैठा है, उसका भी फोर्स नीचे लगा है, दूसरा बंदा यहाँ बैठा है, उसका भी फोर्स नीचे लगा है. दोनों का फोर्स नीचे की तरफ होता है. एंड इट इज पाइवोटेड एट द सेंटर. फलक्रम वहां पे सेंटर पे है. बराबर है? तो दिस इज द केस. अगर फलक्रम सेंटर पे होना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी. यू कैन हैव at different ways, but you have to balance the load and effort. खलाया. अब यहाँ पे अगर आपको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चाहिए, we want to maintain this horizontal, तो for translational equilibrium एक चीज हम भूल गए इसमें, चलो वो देख लेते हैं फिर से. यहाँ पे ये दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, फलक्रम के ऊपर भी इफेक्ट आएगा इसका. तो फलक्रम मेंटेन क्यों करेगा? क्योंकि फलक्रम इज गिविंग इन ऑपोजिट रिएक्शन आर. इन दोनों को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन आर दे रहा है. अब हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेना है ना. अलजेब्रिक सम लेना मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रख के सम लेंगे. तो हम लोग फिक्स करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे. ऐसा पहले से फिक्स करके चलते हैं. तो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव, तो आर विल बी पॉजिटिव है. डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, माइनस F1. F2 इज आल्सो डाउनवर्ड, माइनस F2. अगर अपवर्ड होता तो प्लस लिखते इज इक्वल. अच्छा, इसको हम यूं भी, चलो इसको यूं भी रख सकते हैं, एडिशन है. अब डाउनवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव, और अपवर्ड हो तो पॉजिटिव. इज ऑलवेज इक्वल फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. यानी R will come out to be F1 plus F2, and R will be balancing this F1 and F2. लोड एंड एफर्ट दोनों को बैलेंस करेगा. एक ये बात हो गई. अगर रोटेशन इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होगा? ऊपर नीचे होते होते रोटेशन चल रहे, तो रोटेशन मोशन, रोटेशन इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्या करने का? तो हमने पढ़ा था अभी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में कि अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क शुड बी जीरो एंड टॉर्क इज R क्रॉस F. यहाँ पे R क्रॉस F यानी RF साइन थीटा. टॉर्क इज R बार क्रॉस F बार, यानी कि टॉर्क इज RF साइन थीटा.
ओके, आर एफ साइन थीटा। यहां पे सबसे पहले आर को पकड़ते हैं। ये आर का डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम, सेंटर पॉइंट क्या है 0, आर वहीं पे लग रहा है, तो 0 इंटू आर, ये क्या किया हमने आर एफ और फिर साइन थीटा, साइन, अब ये तो 0 है इसलिए साइन देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ओके, प्लस F1 के लिए हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव डाउन करा तो F1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सेकेंडली यहां से इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेंगे तो D1 नेगेटिव आएगा। तो हियर नेगेटिव D1 इंटू F1 मैग्नीट्यूड, एंड दोनों के बीच का एंगल साइन 90 0, अच्छा सॉरी नेगेटिव F1 साइन 90 यानी 1 होगा, सॉरी, प्लस तीसरा F2 के लिए D2 डिस्टेंस पॉजिटिव साइड पे ना, F2 नेगेटिव माइनस F2, दोनों के बीच का एंगल साइन 90, टोटल तो 0 है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये तो 0 हो गया यानी रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, रिएक्शन फोर्स का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये दोनों देखो साइन 90 इज 1, तो दिस विल बी D1 F1 माइनस D2 F2 इक्वल टू 0, D1 F1 माइनस D2 F2 इज इक्वल टू 0। अब इसको समझने के लिए भी समझ सकते हैं, यहाँ D1 F1 क्या होगा, D1 से F1 रोटेट किया है क्लॉकवाइज, नेगेटिव ले लो तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर, D2 F2 पॉजिटिव, D1 F1 नेगेटिव, या फिर देखो डायरेक्टली तो D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, D1 F1 इक्वल टू D2 F2, मोमेंट्स आर सेम, प्रिंसिपल मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स आर टू बी बैलेंस्ड, क्लियर। यहाँ पे लोड लगाया तो लोड का जो डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम, डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द फलक्रम दैट इज D1 इज कॉल्ड लोड आर्म, इज कॉल्ड द लोड आर्म। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम द फलक्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। तो ये भी बोल सकते हैं कि D1 यानी लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, वैसे भी इक्वेशन बोल सकते हैं। बेसिक चीज समझ में आ गई कि टॉर्क सिग्मा टॉर्क टोटल टॉर्क शुड बी 0, डायरेक्शन को ध्यान में रख के चलने का ये इंडिकेटर के साथ। अच्छा एक और बात, यहाँ पे रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, MA, मैकेनिकल एडवांटेज इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। अब मैकेनिकल एडवांटेज यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 by D1, F1 by F2 will be D2 by D1, क्लियर। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला F1 by F2, मैकेनिकल एडवांटेज इज F1 by F2 and that is D2 by D1, and load upon effort and ये effort arm upon load arm। इसका फायदा क्या है, if D2 is bigger than D1, आप D2 ज्यादा रखें, effort arm का डिस्टेंस ज्यादा रखें as compared to load arm, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी, therefore मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1 उस केस में, therefore F1 upon F2 will be more than 1, therefore F1 will be bigger than F2, यानी कि आप कम एफर्ट लगा के भी ज्यादा लोड खींच सकोगे। अगर ये डिस्टेंस आपने ज्यादा लगाया रखा तो कम एफर्ट पे भी यू विल बी एबल टू पुल द ग्रेटर लोड। आप इंजीनियर बन रहे हो, पता है ना, कम एफर्ट पे भी अगर ये डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं एफर्ट आर्म का तो कम एफर्ट पे भी लोड ज्यादा खींच सकते हो। इधर एक जाड़िया को बिठा दो, हैवी बॉडी, या लाइट बॉडी बैठ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो लाइट बॉडी विल बी एबल टू पुश अप द हैवी बॉडी, है ना। प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छी चीज है ना, दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लियर, गॉट इट, दैट्स ऑल। हाँ, ये तो एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट रहा है यहाँ पे, समझा हमने कि क्या है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। विल बी डूइंग 2 or 3 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, वो जब न्यूमेरिकल सेक्शन में लेंगे तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ओके। हाँ, यहाँ पे हमारा टॉर्क का पूरा काम खत्म हो गया। पहला लिया था टॉर्क एक्टिंग ऑन सिंगल पार्टिकल, फिर लिया टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी को भी ले लिया। तीसरा हमने लिया इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, चौथा हमने लिया कपल के बाद यहाँ पे साथ में प्रिंसिपल मोमेंट्स को जोड़ दिया हमने, ओके। तो यहाँ पे टॉर्क की सारी कहानी खत्म। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन।